Assalamualaikum everyone. Welcome to Azadari Imam's Health and Wellness Podcast. My name is Sana Rizvi. I am one of the directors of Azadari Imam Community Outreach Society, which is a nonprofit based in the United States and Canada. Our nonprofit's biggest project is AEI Telehealth, which I'm sure if you are watching this podcast, you've heard of before. We have started free medical clinics in Iraq and Pakistan, several of which Dr. Tathir Hassan, our special guest today, volunteers at, and she'll speak to you all about what that is. The point of this podcast and today's first episode is to introduce you a little bit to our organization, the work that our organization does, and how we serve underserved communities. And one of the ways that we do that is we run these free medical clinics that gives access to healthcare to those who don't have it readily available the way that we do here in the West. And so we have started in Iraq and Pakistan, but our dream is to take it much farther than that and reach anyone who needs access to basic healthcare, food, anything, education. And so please join us on this journey. And today's podcast, inshallah, will be on OBGYN and the journey of our OBGYN volunteer within our clinics and the work that she does outside of our clinics. So without further ado, I'll introduce Dr. Tathir Hassan. And Dr. Tathir, can you tell us a little bit about yourself? Yeah. Assalamualaikum. My name is Dr. Tathir Hassan. I'm a Dow Medical graduated in 2018, then did my gynae residency from Pakistan, and after moving to US in 2023, I was giving my papers at the USMLEs, and then when I heard about that AEI telehealth, I've joined you guys. It was in January 2025, and then we've started our clinic from February. Last week of February, I guess. Mm-hmm. So since then, I'm serving people from Najaf and Pakistan. Yeah. Both patients related to OBGYN and gynae. But you've done general clinic for us too. Yeah. I've done 4 to 5 times. I've done the general clinic as well. Mm-hmm. But basically, I was trying to do that gynae stuff because that I can do better. So one thing I actually should mention to those listening, the way our clinics operate, 3 of our clinics are running telehealth, and telehealth is our bread and butter. That's how we started these clinics. So we chose populations that had very little access to healthcare or had a difficult time finding access to healthcare. So we identified a population in Najaf al-Ashraf in Iraq, and then there's the population of Kot Addu in Punjab, Pakistan. Very secluded population. They have very tough time finding access to medical care. And then there is Parachinar, which especially if you are Shia Muslim, then you're familiar with Parachinar. Parachinar is a very famous population. Their struggles are really well known. Amazing, extraordinary population that we get to work with, alhamdulillah. So we have 3 clinics, and we have in-person clinics. So our patients can walk up to, any resident of that area can walk up to that clinic, and we have a nurse present there. We have clinic administrative staff there, and we have a telehealth setup there. So the nurse will at first see the patient, the clinical staff will put them into our EHR, our electronic health record, and then they are seen by our doctors. So we have one doctor at each clinic who appears telehealth Monday through Friday, and then on the weekends we have specialists like Dr. Tathir who volunteer their time with us and see these patients for free. And that's a huge deal for us because these people are given specialist care, mashallah. So it's really extraordinary. And I wanted to talk about how Dr. Tathir came to Azadari Imam. So initially, when we started the clinics, we had put out a flyer for specialist appointments. And I remember there was some talk from maybe Dr. Fawzia, who is our doctor at Najaf al-Ashraf, had said to us that there are a lot of women in Najaf al-Ashraf who need OBGYN specialists, and they need OBGYN care. And I didn't think that our pediatrician was very, very busy. And so I thought that was going to be our busiest specialist. Mashallah, he dedicates at least 1 to 2 hours every Sunday without fail of just seeing patients constantly, referrals from that clinic. But then Dr. Tathir, you started. So a member of our team, Talib, I remember, had reached out to me and he said, I know an OBGYN who wants to volunteer with us. And so I got on the phone with you, and Dr. Madhya, our chief medical officer, got on the phone with you as well and spoke to you. And then we brought you on board. And since February, Dr. Tathir has nonstop seen patients at our clinics on Sundays.
And I can't believe how many OBGYN patients you get, right? And that's part of the reason we wanted to do this first podcast with you, because that is a need that a lot of people don't realize these underserved communities have. So I want Dr. Tathira to share her experience at AEI. First of all, this is your first time, I think, doing telehealth medicine, right? So how has that experience been? सो जब ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे ब्रीफिंग मिली, आप लोग सबने बताया कि हाँ टेली हेल्थ होगा, और हमने नॉर्मली मैंने खुद से कभी ये टेली हेल्थ नहीं किया था। तो मुझे मैं ये सोचती थी कि गायनी का पेशेंट मैं कैसे बगैर हाथ लगाए देख सकती हूँ। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया, और एक मुश्किल से उस दिन पहले दिन ही 8 मेरे पास अपॉइंटमेंट थे। तो 8 अपॉइंटमेंट्स, और फिर क्योंकि मैं पहले ही डरी हुई थी कि ये क्या होगा, कैसे बात करेंगे पेशेंट से। लेकिन वहाँ पे जो नर्स थी, उन्होंने जो मैं बताती गई वो उस तरह एग्जामिन कर रही, फिर मुझे उस तरह हर चीज़ एक एक चीज़ बता रही, क्या वाइटल्स हैं, क्या पेशेंट की कंप्लेन है। फिर उसको उन्होंने एग्जामिन किया, तो बहुत अच्छे से एग्जामिन करके फिर मुझे पूरी डिटेल बताई कि नहीं इनको इधर पेन है तो इधर नहीं है, प्लस पेशेंट की हिस्ट्री बहुत अच्छे से ली। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि हाँ नहीं, पेशेंट टेली हेल्थ पे हम देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर वो उनके पास वहाँ पे कोई गायनी का अच्छा डॉक्टर नहीं है जो उनकी बात नहीं समझ सकता, या उनकी लैंग्वेज बैरियर है, तो हम क्योंकि उर्दू भी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत, वहाँ के ही पेशेंट्स अगर कोई सिंधी है तो वो हमें ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नजफ़ में जो है पेशेंट्स हमारे पास पाकिस्तान से आए हुए हैं। मतलब जो लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कोई गिलगित बल्तिस्तान का है तो भी हमें ट्रांसलेटर वहाँ मिल गए उनके लिए। प्लस कोई अगर सिंधी पश्तो बोलते हैं तो भी वहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, तो हमें ट्रांसलेट करने की कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। पेशेंट से जो भी हिस्ट्री है वो अच्छे से मुझे पता चल जाती है पेशेंट। प्लस हमने वहाँ पे जब मैं कोई टेस्ट लिख के देती हूँ तो इतना अच्छा स्टाफ है कि वो फ़ौरन उनका टेस्ट हो जाता है, और टेस्ट होने के बाद उन्हें नेक्स्ट वीक का वेट नहीं करना पड़ता। मेरे पास व्हाट्सएप पे उनका टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, और मैं अपने जो मैंने सारी डिटेल लिखी हुई होती है, मैं ऑनलाइन पोर्टल पे देख कर पेशेंट को उसी वक्त ही व्हाट्सएप पे ही दवाई बता दी, या कोई फर्दर अगर टेस्ट कराना है तो वो बता दिया, फर्दर अगर रेफरल देना है तो भी उसी वक्त ही हो जाता है, नेक्स्ट वीक का वेट भी नहीं करना पड़ता। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पेशेंट वेट करे, नेक्स्ट मंथ आए, फिर आपके पास अपॉइंटमेंट ले, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और प्लस वहाँ वालों के लिए वो भी अब ये समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो नजफ़ में जो पेशेंट्स हमारे हैं जो हमारे पास आते हैं, वो उनको वहाँ के डॉक्टर्स नहीं समझ आ रहे हैं। एक प्लस सबसे पहली बात ये कि लैंग्वेज का मसला है, लैंग्वेज का ही मसला है। दूसरा ये कि जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए या तो उनके पास उस तरह के वहाँ पे स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, अगर हैं भी तो वो कंफर्टेबल नहीं है बताने में। जो औरतें आ रही हैं उनको अरबी नहीं आ रही बोलनी, तो और इराक में ब्रेन ड्रेन भी है। There's a lot of brain drain in Iraq, so when the wars happened, a lot of specialists left the area. So when we initially started the clinics, I remember we heard from a lot of hospitals that they were hoping our specialists could also volunteer with them because they had lost so many of those specialists. So some specialists are just not even readily available. I remember you had seen a patient at one of our clinics and had recommended a surgery that she needed, and it was so difficult for us to find somebody in that area in Iraq who could do that surgery. We did, alhamdulillah, but it's that's definitely one of the reasons that population was chosen, the Najaf al-Ashraf population. But I'll let you continue. तो जिस पेशेंट की आप बात कर रही हैं उसी पेशेंट यही थी, मेरे पास आ रही हैं, बहुत सारी आती हैं, तो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए वो आई थी। प्लस वो उनकी हिस्ट्री थी 20 ईयर्स से वो ले रही थी दवाएं, और नहीं हो रही थी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, नहीं सही चल रही थी, वो दवाएं ले रही थी। प्लस वो हमारे पास आई तो उनकी जो भी प्रॉब्लम थी हमने पहले लेकर ऐसा उनकी स्टेप 1 से उनको देखा कि क्या क्या पीछे की क्या हिस्ट्री है उनकी, क्या उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब एक कोई बहुत बड़ी मोटी सी फाइल थी, बहुत लंबे टाइम से वो अपने टेस्ट करा रही थी, लेकिन वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही थी जो उनका मसला था। और वो उस जगह के हर जगह बेचारी घूम रही थी, सब कुछ कर रही थी। उन्होंने हिस्ट्री बताई, हमने बेसिक से एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में थोड़ा लगा कि हाँ कुछ सस्पिशियस चीज़ है। उनका एक पेल्विस में मास आया, मैंने एब्डोमेन पेल्विस दोनों अल्ट्रासाउंड कराए थे। पेल्विस में मास आया, नेक्रोटिक मास करके। शुक्र है कि एक अल्ट्रासाउंड जो हुआ जिसने भी किया था उसने बहुत अच्छा सा दे दिया, वरना एक ये प्रॉब्लम भी है नजफ़ में कि अल्ट्रासाउंड भी ठीक नहीं होते हैं। अगर मैं अल्ट्रासाउंड पेल्विस लिख के दूँ तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हो जाता है, ये गलत। पेशेंट जो है ना इस चीज़ में बहुत ख्वार हो रहे होते हैं कि वो सही डायग्नोसिस पे नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, इस टाइम भी ख़राब हो रहा होता है, आपकी डिजीज़ और आगे बढ़ रही होती है। यही चीज़ उस पेशेंट के साथ
हुई। Yeah. तो वो एटलीस्ट कोई 2 साल से तो लगातार वो दिखा रही थी Before she came to our clinic. बिफोर वो हमारे पास आई, उससे पहले वो 2 साल से इधर उधर डिफरेंट जगह दिखा रही थी। हमने सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड के बिना पर थोड़े ट्यूमर मार्कर्स होते हैं कि देखा जाए कि अगर कोई मास आया है तो उस मास के मार्कर्स क्या हैं, मींस के एक ब्लड टेस्ट समझें, ब्लड टेस्ट होता है। हमने ब्लड टेस्ट कराए, उसमें मार्कर्स हाई आ गए। मार्कर्स हाई आने से समझ आ रहा था कि कोई ओवेरियन मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो उसको फर्दर देखने के लिए सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन भी थोड़ा, क्योंकि ये वाली चीज़ें हमारे उसमें बस में नहीं आती हैं, ये सब अभी तक हम आगे उसमें नहीं पहुँचे हैं कि हमारी एक सीटी स्कैन मशीन हो। हम फर्दर मैं चाहती हूँ कि ये आगे जाएँ और हम ये सीटी स्कैन और एक अल्ट्रासाउंड वहाँ पे ज़रूर हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, तो ये बेसिक मुझे लगता है अल्ट्रासाउंड तो बेसिक है कि कोई अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर होना चाहिए वहाँ पर ताकि वो सही से सारी चीज़ें हो जाए। तो हमने सीटी स्कैन बहुत मुश्किलों से 4-5 जगह बात करके फिर उनका सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि उनकी मैलिग्नेंसी है। फिर फर्दर एक दूसरा चैलेंज था कि उनका, क्योंकि अब हम टेली हेल्थ हैं लेकिन हमें उनका वहाँ मदद भी करनी है कि अगर हमने पेशेंट को डायग्नोस कर लिया, लेकिन डायग्नोस करने के बाद आगे तो फर्दर करना है ना, तो लेकिन अब हमने उसके लिए बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स यूज़ करे, वहाँ के डॉक्टर से बात करी। एक डॉक्टर मिली भी जिनसे हमने बात कर, जिनसे हमने नहीं पेशेंट्स को वहाँ भेजा, उन्होंने एग्जामिनेशन कर लिया, सब कुछ हो गया। फर्दर फिर सर्जरी के लिए उन्होंने किसी और को रेफ़र किया। फ़िलहाल उनकी अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी हो चुकी है। Now she needs further कैंसर ट्रीटमेंट, उनकी कीमो रेडियो ये सब चल रहा है। लेकिन मेरा बताने का ये मकसद है कि देखें वो 2 साल से घूम रही थी, उनको अब ये पहले भी डायग्नोस हो सकता था, 2 साल पहले भी। अब जब डायग्नोस हुआ स्टेज 4 था। फर्दर एक्सटेंसिव सर्जरी हुई, अभी भी एक्सटेंसिव कीमो चल रही है। अल्लाह करे वो और अच्छे से ठीक हो जाए, मौला उनको सेहत नसीब करे। लेकिन हम ये चाह रहे हैं अब कि मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह की अगर कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ है तो वो हम पहले डायग्नोस करें। हम इतना लोगों को शऊर दे सकें कि वो जल्दी आ जाएं क्लिनिक, या अच्छे से डायग्नोस करके अगर है तो उनकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। फर्दर एक सीटी स्कैन हो जाए, अल्ट्रासाउंड हो जाए, जो हमारे ही क्लिनिक के अंडर हो, हमें फर्दर और 2-3 हफ्ते बर्बाद ना करने पड़े इन सारी चीज़ों के। So now I want to talk a little bit about Dr. Tathir. You have volunteered both at Najaf Al Ashraf Clinic with us now and also Code Adu. Yeah. 2 different populations, 2 different countries, and so what did you see are the differences between the 2 populations? What are the similarities? And part of what makes you unique, I think, in this work is that your residency was also in underserved communities. So you're very familiar with populations that don't have access to healthcare the way that we would readily have it available. Even in Pakistan, in bigger cities, people have access to healthcare, not the way that these women do in Code Adu or Najaf Al Ashraf. They have very different resources available to them. So first, can you talk a little bit about what you've seen in the Code Adu population? What are the similarities in the 2 populations and what are the differences? सिमिलैरिटीज़ में तो यही होगा कि पे दोनों जगह अनअवेयरनेस है। किसी भी चीज़ के बारे में उनको पता ही, उनको ये नहीं मालूम कि हमें क्लिनिक कब आना है। कभी तो पेशेंट इस तरह आप देखेंगे कि बिल्कुल अपनी बीमारी के एंड स्टेज पे आ रहे हैं कि मतलब अब आ रहे हैं। बहुत टाइम से उनको दर्द है, पेट में दर्द है, नहीं वो 2-3 साल से नहीं दिखाए थे, लेकिन अब आ रहे हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा मसले हो गए हैं। तो जब वो आते हैं, दिखा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट आगे बढ़ती है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए उस वक्त कि नहीं। अब जैसे ये जो पेशेंट थी जो मैंने नजफ़ की बताई, इसका भी यही था। इनके साथ ये मसला था कि ये दिखा तो रही थी 2 साल से, लेकिन ये गलत डायरेक्शन में जा रही थी, या इनको लेकिन नहीं, वहाँ पे नजफ़ में ये मसला है। वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत महंगा है। जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ केयर महंगा है। और वो एक छोटा सा टेस्ट कराने भी जाते हैं तो मुझे क्योंकि मैं गायनी में ज़्यादा टेस्ट कराने पड़ते हैं। अगर कोई फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है या कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए आ रहा है तो हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो उनको प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये होता है 2-3 हफ्ते बाद टेस्ट कराते हैं। सही। दूसरा ये होता है कि वहाँ पर हेल्थ केयर ही नहीं है कोड एडू में। अब क्लिनिक हुआ है तो क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, लेकिन जो उससे पहले के हैं, जो उससे पहले उनको तो पता ही नहीं है ना कि क्लिनिक आपको आना कब है। कुछ लोग तो आ जाएंगे आपको नज़ला खांसी में भी, और कुछ लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग तो किसी भी चीज़ में नहीं आएंगे। And but the other thing about our clinics is that
if one of our doctors or our specialists recommends a lab, then that's covered by our clinic. Because even if they went to an Iraqi hospital that wrote a test for them, they couldn't afford it. So that's been a huge thing. And and I also want to address the fact that healthcare is not very easily affordable in the United States either. But there are very basic things that we can get over the counter or that we have access to, that we can look up, that these people do not have access to. So our clinic runs like a general urgent care almost for them, and is able to provide them with those resources, and that has made a huge difference. I think we will also have a conversation inshallah with our pediatrician, who will tell you how he saw like malnutrition in this population, and he was like, they don't have a basic awareness of what they should be eating, but they also can't afford that kind of food. So that is also something to note. Let's go back to Kot Adu for a second. In the Kot Adu population, I remember having this conversation with you because Dr. Tathir covers not only OBGYN patients in Kot Adu. You have volunteered, mashallah, say, from 1 a.m. to 4 a.m. Chicago time, where we're based, to cover the Kot Adu clinic when our doctor is out. So you have a very good understanding of what that community needs, and one of the things you had pointed out to us was that they get, and Dr. Sheikh, our pediatrician, had pointed this out too. He said they're getting scabies, but they're getting infected scabies on top of that. So there's a hygiene issue in that population. I didn't know that scabies I'm a non-medical professional, by the way. So I'm learning a lot from this process. And one of the things I had learned was that scabies is a hygiene issue. It's very common in these populations, in Pakistan, especially in these populations. So can you tell us what causes scabies and what are these hygiene issues that you're seeing there? एक तो जब पेशेंट्स को देखा स्केबीज है, एवरी सेकेंड पेशेंट जो है वो स्केबीज का आता था. तो मैंने पूछा कि आप पहले तो फर्स्ट पेशेंट को लिख दिया कि हाँ स्केबीज लगा लोशन लगाएं और एंटी स्केबीज लोशन लगाएं, ये सारी चीज़ें जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो दे दी. पेशेंट से पूछा, सेकेंड पेशेंट आया, वो भी सेम कंप्लेन. अच्छा, कंप्लेन उनको होती है इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, रात में ज़्यादा हो रही है. तो अच्छा देखा तो हाँ स्केबीज के साइंस थे. तो फिर जब 2-3 पेशेंट लगातार देखे तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर हमने लोशन दिया, सिर्फ लोशन लगाना नहीं है, ये दवाई सिर्फ खानी नहीं है, इनको नहाना भी है, उसके बाद बेडशीट्स भी चेंज करनी है. ये सब उन्हें बेसिक चीज़ें ही नहीं पता थी. उनको था कि हाँ ये किसी कीड़े ने काट लिया, कुछ इस तरह का है. फिर बिठा कर समझाया एवरी पेशेंट को कि नहीं ये लोशन लगाना है, फिर आपको नहाना है, जो बराबर में सो रहा है, जो एक ही बेडशीट यूज़ कर रहा है, उसको सबको नहाना है दूसरे दिन सुबह में उठ के. तो उनको नहाने का सिर्फ पानी डालने का मतलब पता था कि कोई सोप यूज़ करना है, कुछ नहीं पता था. उन्हें पूरा बताना पड़ा कि नहीं सोप भी यूज़ करना है. सोप एक चीज़ होती है. They don't have, the other thing we realized while this was happening is that they don't have access to soap. So we are out of these conversations that we had with Dr. Sheikh, Dr. Tathir, who covered Kot Adu, we decided, okay, there needs to be a workshop, community workshop for this community to talk about basic hygiene issues. And so one of the things that our staff there had asked us to give away in the giveaway bags was they were like, can we put soap in there, because they don't have access to soap. So, and I remember you and I talking about that and being like, that's so crazy. We can literally go out and buy soap right now. I can buy 100 soaps right now for myself, So, alhamdulillah. It's a basic necessity. Yeah, it's a basic necessity. So important for health. Yeah, और उनको नहीं पता. Yeah. उनको पता ही नहीं ना, मीन्स उनको प्रॉपर हाइजीन का नहीं मालूम कि आपको वॉशरूम जाना है तो हैंड वॉश करने हैं, प्रॉपरली कैसे वॉश करने हैं. प्लस पीडियाट्रिशियन ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. लेकिन 1-2 पेशेंट जो मैंने देखे वो मैलनरिश इसलिए भी थे कि आयरन डेफिशिएंसी लग रही थी उनके अंदर, देखने से ही लग रही थी. क्योंकि हो सकता है कि उनके पेट में कीड़े हो बच्चों के. हमने ट्रीटमेंट दी तो फिर फर्दर आगे उनका हुआ होगा चीज़ें सही. लेकिन क्योंकि हाइजीन नहीं है. सबसे पहली चीज़ है कि वो सफाई का ख्याल ही नहीं है, प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है. उनको मुझे नहीं लगता कि कभी भी बताया गया इस तरह के जो छोटे गांव. और क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम कर चुकी हूँ तो हाँ देख कर ही वहाँ कभी कभी एहसास होता है कि नहीं दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन ये लोग कुछ लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए. और वो उसमें हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि हम विद अस या तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हमें पता है तो हमें उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए. अब उन्हें नहीं पता कि सोप यूज़ करना है या उन्हें नहीं पता कि वॉशरूम यूज़ करना होता है. वॉशरूम भी कोई चीज़ होती है, ये भी नहीं पता होता. Right. Yeah. And this population, by the way, I just remembered that we also learned that their whole livelihood is the animals that they raise. So one of the things our staff had told us there, I remember, where they were like, yeah, they really need soap because they're touching these animals and then they're just using water to clean their hands. And then, they're eating, they're touching themselves. They're, so that was the other thing is soap is such a necessity, like basic hygiene that we talked about.
So we talked a little bit about the different clinics and what we're seeing in the different populations. One thing that you had mentioned earlier was that women come to you really late. And so what are the things, I think one thing that is actually common probably globally, even here, I grew up here and I have a Western education, but I don't know much about women, like women's health. I don't know general things about women's health that I actually learned through you. So, and the work that we do here. So what are the things women should be regularly doing to take care of their bodies? What are things that should alarm them? And what are the tips that you can give women for their health? So first of all, exercise, good diet, and regular OBGYN visit. रेगुलर नहीं, अगर साल में एक दफ़ा हो जाए, ताकि आपके अगर एग्जामिनेशन हो पेशेंट की, एग्जामिनेशन हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद इन केस अगर कोई चीज़ नीड है तो फर्दर आगे प्रोसीड करा जा सकता है. लेकिन ईयरली विजिट से आपकी स्क्रीनिंग हो सकती है, जो कि जैसे एज 21 के बाद आपका पेप्समेयर होना चाहिए. सही है, पेप्समेयर होना ज़रूरी होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए. स्क्रीनिंग का एक फर्स्ट स्टेप होता है पेप्समेयर. सही है, जो कि सर्वाइकल कैंसर आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंदर. सेकंड चीज़ ये है कि मैमोग्राम, एक फर्दर एज के बाद मैमोग्राम होना चाहिए पेशेंट की. अगर हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसके लिए हमें पहले उस एज लिमिट से पहले हमें स्क्रीन करना होगा पेशेंट को. तो अगर आप पेशेंट ईयरली विदाउट, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गायनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सब कुछ साइकिल सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी आप एक वेलनेस विजिट जैसे आप नॉर्मल फिजिशियन को कराएंगे, आप एक गायनी डॉक्टर को कराएं, ताकि आपकी वैक्सीनेशन प्रॉपर हो सके, आपकी आपको अल्लाह ना करे लेकिन किसी भी फर्दर कोई बीमारी से पहले आपको डायग्नोज कर लिया जा सके, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग होगी. So you're recommending a yearly visit to an OBGYN? Yeah. Okay. So that visit and vaccination and stay on top of your and vaccinations. screening. Okay. And screening में पैप्समेयर और मैमोग्राम आ जाता है, बेसिक स्क्रीनिंग होती है. फर्दर ये कि जो ज़्यादा कंसर्न होते हैं हमारे गायनी में, जो मेरे पास ज़्यादा आते हैं अब नजफ़ में या उधर कोटाडू में, कि अर्ली मेनार्की हुई पेशेंट, मेनार्की मीन्स के स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. Okay. सही है, तो उसके बाद 1 to 2 months पीरियड्स हुए, पेशेंट्स को नहीं हो रहे, जो भी बच्ची है उसको पीरियड्स नहीं हो रहे. पेशेंट क्या करते हैं, हमारे आने से पहले वो 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया हुआ होता है और उन्होंने उनको कोई हार्मोनल दवाई दी हुई होती है. उनको ये बेसिक अभी समझ ही नहीं आया है कि जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एटलीस्ट इट विल टेक अ ईयर टू गेट रेगुलर एंड सेटल्ड. I didn't know this. You told me this. So that when you taught me this, that I think initially women learn that when you start your period, it's going to happen. You're told it's going to happen once a month. Yeah. But that's what you're saying. It's not. It's not certain. It's not that. So you're saying it takes a year for your cycle to regulate. या तो अब उसमें क्या होता है, पेशेंट नॉर्मल क्लिनिक, लोकल डॉक्टर, या वो पाकिस्तान में तो जो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे तो ऐसे नॉर्मल डॉक्टर्स भी नहीं होते. वो जो क्लिनिक खोले बैठे हैं वो डॉक्टर नहीं होते. तो वो आपको, उन्हें बेसिक 4-5 दवाएं पता है, ये मसला होगा तो वो दवाई दे देंगे, तो वो उसमें वो आपको हार्मोनल दवाई दे देते हैं. Okay. और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं पीरियड रेगुलर करने के लिए. 1 महीने तो रेगुलर हो जाते हैं या बेसिक सही हो जाता है, सबको लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फर्दर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपकी पीछे ब्रेन पर. जब हम ऊपर से हार्मोन ले लेंगे तो ब्रेन को लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हार्मोन हो गया, वो अपना मैकेनिज्म जो नेचुरल चल रहा है उसको शट डाउन कर देगा. इससे चीज़ें सही नहीं होती हैं, इससे फर्दर और ख़राब हो जाती हैं. तो पहले फर्स्ट तो यही हमें समझना है कि मेनार्की हुई, आप वेट करना है, कोई मसला नहीं है, 1 साल लगेगा, आराम से सेटल हो जाएंगे. एक चीज़ ये जो मैंने देखी. दूसरा ये कि जो मीनोपॉज होता है उसके बाद भी फर्दर पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं, उनको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं. मीनोपॉज हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फर्दर दोबारा वही हो गया, तो अब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. बस ख़त्म हो गए. हमारे यहाँ औरतों में ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डॉक्टर से मशवरा करेंगी. लेकिन अब हार्मोनल इम्बैलेंस है, मूड स्विंग्स हैं, स्लीप ख़राब हो रही है आपकी, आपके स्किन चेंजेस हो रहे हैं, आपके ड्राइनेस हो रही है, आपको जाना है, आपको उनसे बात करनी है. हर चीज़ की एक सॉल्यूशन मौजूद है. ये नहीं सोचना कि अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा, इससे फिर चीज़ें फर्दर ख़राब होती हैं. तो ये इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए. So do you recommend when a girl first gets her period that her mother or somebody should take her to a doctor so that the doctor can tell her, okay, got it. So I think some people might think that this is, you are overreacting if you go to the doctor about something you're expecting, like, if you're because you're a girl, you're expected at a certain age to get a period. But I think what you're saying makes a lot of sense. If you take your daughter at that point
or if you yourself at that point go to a doctor, that doctor will give you good advice on what's normal, what's going to be the normal, symptoms that you see of this, what will be the normal progression of your periods, and what to look out for that might be abnormal, right? And then the same thing for menopause. Actually, what you mentioned is so interesting to me, because you said that women who get menopause symptoms don't go to a doctor. I wouldn't expect them to, because I think if I was in their shoes and I was just always expecting that to happen, I wouldn't think that anybody could help me. but you're saying you should go to a doctor if you have those symptoms. Okay, so what at that point, if you get a patient who is starting to have menopause symptoms, what do you tell them? फर्स्ट उनको रेगुलर एक्सरसाइज जो कि हमें करनी ही है. रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं. वाइटामिन लेने हैं, अच्छी डाइट लेनी है. वाइटामिन में वाइटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है, जब मेनोपॉज होता है, ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो जाता है. ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी बिल्डअप, आपकी बोन्स को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा होता है. जब आपकी बॉडी से ईस्ट्रोजन अब ख़त्म हो रहा है, तब क्या होगा कि अब आपकी बोन्स वीक होना शुरू होंगी. तो आपने विटामिन डी लिया, फर्दर डिटोरिएट होने से तो बचाएगा ना. दूसरा ये कि एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रांग होंगी बोन्स. ये सारी चीज़ें, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर बैठना है, अब बूढ़े हो गए, नहीं अब जोड़ों में दर्द होगा ही होगा. नहीं, अब आप उसके लिए काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी. आपको कुछ करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी कि आप एक रेगुलर विजिट कर रहे हो. तो बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर का विजिट, और फर्दर से डिस्कस करना. कुछ नहीं समझ में आ रहा, पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं मना करेगा. मुझे लगता है कि गुस्सा नहीं होंगे कि आप फालतू के क्वेश्चंस करें. नहीं, वो आपका राइट है, आपको जानना है, और आप जाएं, पूछें, एक विजिट लें, सिर्फ बात करने के लिए कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, या मेरा मेनोपॉज आ गया है और फर्दर मुझे 1 साल से पीरियड्स नहीं हुए हैं. जब किसी फीमेल को एज होती है 45 to 55, इस दरमियान में 1 साल तक पीरियड्स ना आए, इसका मतलब है उनको मेनोपॉज हो गया है. अब इन्हें जाना है डॉक्टर के पास. उस दौरान, उससे पहले कि मुझे फर्दर अब क्या क्या लेना चाहिए, मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, क्या मैं मिनरल्स लूँ, या पहले मैं कोई दवाई नहीं ले रही थी तो अब मैं कोई विटामिन लूँ या कुछ लूँ. और रेगुलरली एक विटामिन डी का कैप्सूल लेना चाहिए. डॉक्टर रेकमेंड जब जितना करे उतना. ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त ही लें. Okay, that's really good to know, actually. So what you're suggesting is that if someone's going through menopause and they go to a doctor, they can get treatment, they can get recommendations for how they can make the symptoms more bearable? Yeah. Okay. More bearable. Okay, got it. That's really interesting to know. See, these are such important questions for us to know as women, I think, and it was so enlightening. I learned so much about women's health and what we should be doing. I think your number one tip has been to go see your doctor. If you have access to a doctor, you should regularly be going to see your doctor. You should if you're a woman, you should have an OBGYN that you regularly see. And if you are uncomfortable, then there's something wrong, and your body knows when something is wrong. So listen to your body, and listen to us, and continue to support us. Please follow us on our Instagram. Our Instagram is aei.telehealth, and follow us on our website www.aei-telehealth.org. You can learn about all our initiatives there. You can learn about our parent organization there, and how you can continue to support our work. You can donate. You can also donate your time to us. So if you want to volunteer with us the way Dr. Tathir does, and even if you're a non-medical volunteer, we welcome all volunteers. So send us an email at info@aei-telehealth.org and get in touch with us. And join us, inshallah, next week as well. We will have a different conversation, a different topic, and recommend and comment below what kind of topics you want to hear about, and we will address them, inshallah. All right. Okay. Oh my gosh.